Jai Bharat, dear all Bacha party. So in our last lecture, we discussed about the three kind of passive transport that include osmosis, diffusion and facilitated diffusion, right? In this lecture, we are going to discuss about the second type of transport, that is active transport. We have already briefed the difference between passive and active transport, right, in a previous lecture. But still, let's see some characteristic features of active transport. The first characteristic features of active transport is that active transport is energy dependent and a rapid process, right? That means this process requires expenditure of ATP, and that is due to here the movement of molecule is against concentration gradient, right? Means what? The movement of molecule from its lower concentration towards its higher concentration. That required what? That required energy, right? And that is because it is an energy dependent process, and if it is an energy dependent process, the process is faster, right, than the passive transport. So process is faster and the energy is provided by hydrolysis of ATP or any phosphate containing energy molecule, right? Okay, now material can be completely transported, means what? For example, in some area there is 100 molecule of any substance, and on the other side there is a 20 molecule. The 20 molecule can also be absorbed, right? Means completely transported against the concentration gradient, right? Suppose एक जगह पे suppose यहाँ पे 50 molecule है, right? दूसरी जगह पे भी कितने हैं 50 मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे ये 50 के 50 मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ पे कितने हो जाएंगे 0, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 100. दैट इज ऑल्सो कैन बी पॉसिबल. समझ में आ रहा है? ओके, सो इट इज अ कंप्लीट ट्रांसपोर्ट. इट कैन बी पॉसिबल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड द मूवमेंट ऑफ आयन इज यूनिडायरेक्शनल, राइट? कोई एक ही डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा. सेकेंड थिंग, दिस प्रोसेस आर हाईली अफेक्टेड by temperature, by absence of oxygen and presence of metabolic inhibitors like cyanide. That also we have discussed, because these all characteristic feature, that means absence of oxygen, temperature and the metabolic inhibitors like cyanide, they directly shows their effect on what? Mitochondrial process. And the mitochondria is related with the process of what? Respiration. And if the respiration not takes place, ATP generation is not possible. But this entire process required what? It required ATP, right? And that is because without ATP this process cannot be possible. और इसलिए ये जो process जो है that affected by all this factor. Example for active transport are sodium potassium pump, right? That we will discuss in a chapter of a neural system. Then calcium pump, cytochrome pump, right, which is present in a inner membrane of a mitochondria. Then protein or lecithin, we can say the pump, endocytosis and exocytosis. These are the certain examples for active transport, right? अब हम ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं. अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं. अगर हम बात करें तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है that are of two type. One is primary active transport and the other one is secondary active transport. What is the difference between the primary active transport and the secondary active transport? अगर दोनों active transport है, right? One is active transport and the other one is a byproduct of active transport. कैसे वो देखते हैं. Active transport का मतलब क्या होगा? If any process which takes place against the concentration gradient, if any process which takes place against the concentration gradient and that process utilizes directly ATP, right, or any phosphate containing compound for the energy, then it is considered as a primary active process, जिसमें डायरेक्ट ही क्या यूज होगा? एनर्जी विच इज रिलीज बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP. ओके, यहां पे देखिए क्या लिखा है. व्हेन एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट is derived directly from the breakdown of ATP or some other high energy phosphate compound. वो क्या हो सकते हैं? It could be a GTP as well, right? Okay. एग्जाम्पल क्या है? सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप. यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है, इट इज अ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप. इसमें ये जो पूरा पार्ट है
दिस इज नथिंग बट द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और यहां पे जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, इट इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक प्रोटीन, व्हाट इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। ओके, इसके अलावा ये हम जाते हैं द आउटर साइड इज ECF, द इनर साइड इज साइटोप्लाज्मा, राइट। ओके, अब अगर मैं सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहा हूं तो यहां पे दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्ट एज ATPase, this intrinsic protein act as ATPase, it act as ATPase, and if one molecule of this ATP is undergoes a process of hydrolyzation and it form what? ADP, adenosine diphosphate plus one inorganic phosphate is released and it releases energy. इससे क्या रिलीज होगा? एनर्जी। तो एटीपी कन्वर्ट हुआ किस में? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और उससे जो भी एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ, दैट एनर्जी यूटिलाइजेस टू पंप आउट 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एंड टू पंप इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम। तो और ये प्रोसेस पर्टिकुलर कहां पे होती है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन सेल विच इज नोन एज अ न्यूरोलेमा। व्हाट इट इज कॉल्ड? न्यूरोलेमा। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है, दिस एटीपी मॉलिक्यूल जो है दैट अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कौन करता है? दिस ATPase एंजाइम। दिस एंजाइम इज नथिंग बट द इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड दैट रिलीजेस द एनर्जी एंड दैट एनर्जी यूटिलाइज बाय पंपिंग आउट 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। उसके सामने कितने पोटेशियम अंदर आएंगे? 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल जो है दैट विल एंटर इनटू द साइटोप्लाज्मा और ब्रिंग इनटू द साइटोप्लाज्मा and 3 sodium molecule moves out from the cytoplasma। तो उससे ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल ये होगा कि बाहर जो है, मतलब इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। क्या होगा? देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द पंप। हम किसकी बात कर रहे हैं? पंप। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था, whenever we use term pump that means it works against the concentration gradient। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे सोडियम बाहर जा रहा है तो उसका मतलब, और काम कौन कर रहा है? पंप। तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? बाहर ही है। कम कहाँ पे है? अंदर। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द हायर। अगर पोटेशियम अंदर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि पोटेशियम जो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पे? इनसाइड द सेल। बाहर कैसा है? कम। ओके, तो यहां पे आप देखिए कि सोडियम के 3 मॉलिक्यूल बाहर और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल अंदर लाने में जो भी एनर्जी यूज हुई, दैट इज डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय द एनर्जी रिलीज बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल। और इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के बाद ओवरऑल सिचुएशन जो क्या होगी? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल। ठीक है, बाहर बहुत सारे क्या है? सोडियम मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो यहां पे सोडियम, इसका मतलब ये नहीं लेना है, इट डजंट मीन दैट द साइटोप्लाज्मा ऑफ दिस सेल डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सोडियम। सोडियम इज दैट, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो सोडियम है, वो सोडियम जो है वो जैसे ही, देखिए बाहरी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो जब वो सोडियम जो है वो अंदर आएंगे, वो अंदर कैसे आएंगे? वो अंदर आएंगे सिंपल डिफ्यूजन से, राइट। बिकॉज अब उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर कैसा है? ज्यादा। लेकिन बाहर ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। तो अब सोडियम जो है वो बाहर है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है। इट इज बट ओबियस इफ द सोडियम चैनल गेट्स ओपन, ये सपोज ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, इट इज नथिंग बट द सोडियम चैनल। ठीक है, ये जो है वो क्या है? इट इज नथिंग बट द सोडियम चैनल। देखिए व्हेनेवर वी यूज वर्ड चैनल, उसका मतलब ये है channel works according to the concentration gradient and pump works against the concentration gradient, right। तो ये क्या है? सोडियम चैनल। जब सोडियम चैनल ओपन होगा, ठीक है, एट दैट टाइम देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो बट ओबियस सोडियम जो है दैट विल मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो सोडियम अंदर आएगा, बट एट द सेम टाइम दिस सोडियम आल्सो ब्रिंग्स द अदर मॉलिक्यूल विच इज नोन एज ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो भी उसके साथ कहां पे आएगा? अंदर। तो यहां पे देखिए कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड द
न्यूरोलेमा, इट ऑल्सो ब्रिंग द ग्लूकोज इनसाइड, ग्लूकोज को भी वो कहां पे लेके आ रहा है, अंदर, ठीक है। ऐसा लीवर सेल में भी हो सकता है, आरबीसी में भी हो सकता है, लेकिन यहां पे देखिए कि ग्लूकोज को अंदर लेने में क्या कोई एनर्जी यूज हुई, कुछ भी एनर्जी यूज नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी यूज क्यों नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि हमने सोडियम का ग्रेडियंट जो वो जनरेट किया, और वो जनरेट हमने कहां किया था, यहां पे। तो ये जो ग्रेडियंट जनरेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये ग्रेडियंट जनरेट होने के बाद जो ग्रेडियंट की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए क्या लिखा मैंने, इन दिस एनर्जी, सॉरी, इन दिस energy is derived secondarily from the ionic concentration. सोडियम का concentration बाहर कैसा है, ज्यादा, अंदर कैसा है, कम, ओके। In this energy is derived secondarily from the ionic concentration gradient. ये gradient generate कैसे हुआ, ये gradient generate हुआ किससे, active transport से, ओके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल को ट्रांसपोर्ट, जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। वो अगर हम बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल को ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज, तो सोडियम एब्जॉर्ब होने के साथ साथ ग्लूकोज भी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि उससे पहले क्या हो चुका था, एक्टिव में अगर हम बात करें तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हो चुका था, ये इसके बाय प्रोडक्ट है, इसलिए ये है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन उसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आई होप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट यूटिलाइज द एनर्जी विच इज रिलीज बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ एटीपी, इसलिए डायरेक्ट एटीपी की एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब वो एनर्जी यूज करके हमने क्या किया, सोडियम का ग्रेडियंट जनरेट किया, तो वो ग्रेडियंट जनरेट होने से एक एनर्जी लेवल बना, जब वो ग्रेडियंट रिलीज होगा दैट ऑल्सो रिलीजेस एनर्जी, तो उस टाइम पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं कि दूसरे भी एग्जाम्पल हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कैल्शियम पंप ऑपरेट्स इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, राइट, विच पंप आउट द कैल्शियम आयन, वो कैल्शियम आयन को क्या कर रहा है, बाहर पंप कर रहा है आरबीसी, एंड द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले एक पार्ट देखते हैं, कैल्शियम पंप ऑपरेट्स इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये सपोज जो हमने बनाया है इट इज नथिंग बट द आरबीसी, ठीक है, और ये क्या है, आरबीसी का मेम्ब्रेन है। दैट आरबीसी मेम्ब्रेन पंप आउट कैल्शियम आयन, मैंने क्या बोला है, सी क्या लिखा है यहाँ पे, पंप आउट कैल्शियम। अगर पंप आउट कैल्शियम मतलब कैल्शियम आयन को बाहर निकाल रहा है तो, और हम पंप बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा, इनसाइड द आरबीसी, हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा, आउटसाइड द आरबीसी। मतलब ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम कैसा होगा, ज्यादा, और आरबीसी में कैसा होगा, कम। तो कम से ज्यादा की ओर ही जा रहा है कैल्शियम, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पंप आउट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम आरबीसी, ठीक है, टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस। तो एक यहाँ पे आरबीसी की जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें भी कैल्शियम पंप है, विच थ्रो द कैल्शियम आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। जब जब हम पंप बोल रहे हैं, याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एंड द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन देखिए मैंने बताया था आपको कि ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट व्हेनेवर वी यूज टर्म सार्कोप्लाज्मा दैट मींस इट इज रिलेटेड विद द मसल्स, ठीक है। तो ये मसल सेल है, तो मसल सेल्स में आप सेकेंडरी में आप पढ़ चुके हो कि मसल सेल्स जो हैं उसका साइटोप्लाज्मा है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलॉइडल, राइट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोफिलामेंट्स है उसमें, ओके। उसमें एक आप पढ़ चुके हो जेड लाइन, राइट, Z line form what? Z line form sarcomere, right? So two successive Z line form a sarcomere and which is a functional unit of contraction of muscle. तो ये जो है वो Z line है। अब Z line के पैरेलल ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है it is nothing but the T tube. इसको हम क्या बोलेंगे? T tube. T tube. And that T tube is nothing but the modification of plasma membrane. Suppose ये plasma membrane है ऐसा flat. राइट, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो साइड से आ रहा है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म फोल्डिंग, ऐसे अंदर की ओर क्या बना रहा है, वो फोल्ड, सेम वे बाहर से भी ऐसे अंदर की ओर क्या बना रहा है, फोल्ड। दैट फोल्ड इज नथिंग बट द टी ट्यूब, उसको क्या बोलेंगे हम, टी ट्यूब। तो टी ट्यूब किससे बना है, वो प्लाज्मा
लेमा से ही बना है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना है, या फिर हम बोल सकते हैं सार्कोलेमा, क्योंकि हम किसके मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, मसल्स के। ओके, अब ये जो टी ट्यूब जो है इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द ईआर। ये जो रेड पार्ट मैंने बनाया है इट इज नथिंग बट द ईआर, वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन किसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मसल्स का है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इट इज कॉल्ड, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्या पड़ा हुआ है, कैल्शियम। तो कैल्शियम इसमें बहुत है, इट एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर कैल्शियम आयन, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई इंपल्सिस जो आएगा, राइट, और वो इंपल्सिस से क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। दैट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप दैट इज स्लाइडिंग मूवमेंट। क्या होना चाहिए, स्लाइडिंग मूवमेंट, वो हम डिटेल में देखेंगे लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में। लेकिन यहां पे आपको इतना याद रखना है कि कैल्शियम जो है इट इज अ ट्रिगर विच स्टार्ट व्हाट, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कैल्शियम जो है वो ग्रेजुअली कहां पे आ जाएगा, कैल्शियम जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बाहर आना कैल्शियम का दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, तो उसमें कोई पंप का काम नहीं है। लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद सेकंड स्टेज इज व्हाट, सेकंड स्टेज इज मसल्स रिलैक्स। मसल जो वापस क्या होना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए। तो रिलैक्स होने के लिए ये कैल्शियम जो बाहर मतलब साइटोप्लाज्मा में जो रिलीज हुए हैं वही कैल्शियम जो है वो वापस क्या हो जाने चाहिए, रीअब्सॉर्ब। लेकिन वो देखिए जब साइटोप्लाज्मा में रिलीज हुए दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपली डिफ्यूजन है वो, ठीक है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। लेकिन जब वो वापस रीअब्सॉर्ब करने हैं, ठीक है, टू रिलैक्स द मसल्स, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसलिए मसल्स जो हैं उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट कंटेन व्हाट, दैट कंटेन आल्सो अ कैल्शियम पंप। पंप है इसलिए फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो स्लाइडिंग मूवमेंट स्टार्ट होना उसके लिए कैल्शियम रिलीज करना पड़ता है, किसमें, साइटोप्लाज्मा ऑफ मसल्स। लेकिन वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बंद करने के लिए या फिर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दैट कैल्शियम शुड बी रीअब्सॉर्ब। रीअब्सॉर्प्शन जो हो रहा है दैट इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज एक्टिव प्रोसेस विच रिक्वायर्ड कैल्शियम पंप, ठीक है। तो आपको कैल्शियम पंप आरबीसी की मेम्ब्रेन में है, इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, in both calcium pump the carrier protein serves as a ATPase enzyme। ये दोनों जो कैल्शियम पंप है उसमें अगर हम कैरियर प्रोटीन जो है दैट सर्व्स एज व्हाट, एटीपीज एंजाइम, मतलब वो क्या रिलीज करता है, एटीपी जो है उसका हाइड्रोलिसिस होगा और उससे क्या रिलीज होगा, एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जांपल देते हैं, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर by the synaptic vesicles of synaptic knob of an axon at the synapse by exocytosis। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इट इज नथिंग बट द एक्सॉन एंड बल्ब। ये जो है ये कौन सा डायग्राम है, इट इज नथिंग बट द एक्सॉन एंड बल्ब। ये क्या है, इट इज नथिंग बट द एक्सॉन एंड बल्ब, एंड दिस एक्सॉन एंड बल्ब कंटेन वेसिकल्स इन इट। तो ये सारे जो हैं इट इज नथिंग बट द वेसिकल्स, एंड दैट वेसिकल्स कंटेन व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर। उसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। उससे पहले हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि टू सक्सेसिव न्यूरॉन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू ईच अदर, देयर इज अ स्मॉल गैप, राइट, देयर इज अ स्मॉल गैप अराउंड 10 नैनोमीटर between these two successive neuron, and that gap is known as synapse. This gap is known as what, synapse, right? Okay, अगर ये दोनों में गैप है तो यहां से यहां मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंपल्सिस जो ट्रांसफर कैसे होगी, दैट इंपल्सिस ट्रांसफॉर्म बाय न्यूरोट्रांसमीटर। किससे वो ट्रांसफर होगी, न्यूरोट्रांसमीटर से, ओके। लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर होंगे कहां पे, इट इज इन अ एक्सॉन एंड बल्ब, और वो ट्रांसफर कहां पे करना है, नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो नेक्स्ट न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के यहां पे क्या होंगे, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट न्यूरॉन के क्या होंगे, डेंड्राइट्स। लेकिन इन दोनों के बीच में मतलब एक्सॉन एंड बल्ब ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, in between these two structure there is a small gap, and that small gap is known as synapse. What it is called, synapse, okay. So from this axon to the next one, how the impulses can transfer, right, and that
ट्रांसफर बाय व्हाट, द ट्रांसफर बाय न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ से जो रिलीज हो रहे हैं, राइट, दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज in this synapse part, that process is nothing but the exocytosis. उस process को हम क्या बोलेंगे, exocytosis, right? It is also known as cell vomiting. What it is called? Cell vomiting. And that exocytosis, as well as if we talk about the pinocytosis, means cell drinking, this all the process are active processes, right? So here we are talking about the three example: calcium pump in RBC, calcium pump in sarcoplasmic reticulum, as well as we are also talking about the exocytosis process which takes place in axon and bulb, which is required or important for the transfer of impulses from one neuron to the next one, right? Okay, now other active processes, for example, before that we are discuss about the two term, one is symport and the other one is antiport. Okay, what is symport and antiport? Supposing that, what is symport? Transport of two different substances in the same direction. Transport of two different substances in the same direction. Okay, let us talk about the previous example. For example, here we have sodium, right? Sodium is moved towards the cytoplasmic part, and that movement is due to the gradient of sodium, and that gradient is generated by the sodium potassium pump, right? So this sodium is basically moved from ECF towards the cytoplasmic part, and that is nothing but the simple diffusion. That require what? Gradient. So gradient तो generate हो चुका है. Concentration of sodium in ECF is higher as compared to the cytoplasma. So that sodium is entering into the cytoplasmic region, but simultaneously it also bring what? It simultaneously is also bring glucose. वो अंदर क्या लेके आ रहा है? Glucose. So in that case, glucose and sodium is moved from ECF towards the cytoplasma. So both the molecule, which is different from each other, they are entering in the same direction with the one carrier protein. See, symport means what? Transport of two different substances in the same direction by the same carrier molecule through plasma membrane. It is also called co-transport. साथ में co-operation, co-transport, साथ में वो transport हो रहा है. Example, sodium and glucose transport during the selective reabsorption from the नेफ्रॉन. नेफ्रॉन मतलब किडनी में भी ये होगा कि सोडियम जो एब्जॉर्ब होगा उसके साथ क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो भी एब्जॉर्ब होगा, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों एब्जॉर्ब हो रहा है. दैट इज अ सिम्पोर्ट. ओके, दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज एंटीपोर्ट. ट्रांसपोर्ट ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द सेम कैरियर मॉलिक्यूल. एक ही कैरियर मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल डिफरेंट सब्सटेंसेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, राइट? ओके, and that is known as counter transport. ये क्या था? Co-transport. If two molecule moves towards the same direction, it is known as a co-transport or symport. If it is in the different or opposite direction, it is known as counter transport. Counter transport जो है उसमें भी हम example जो है वो देख सकते हैं. Counter transport जो है उसका example है suppose सोडियम, और उसके साथ हम ले सकते हैं कैल्शियम. Sodium and calcium, right? These are the two positive charge ion, right? By same carrier protein, it can move on the different direction or opposite direction, right? So this is the example of a antiport or counter transport. Okay, now it is a very important point, that is exocytosis and endocytosis. Together, it is known as exocytosis and endocytosis. Endocytosis means what? That some molecule enter into the cytoplasmic region, right? And the exocytosis means what? Some molecule is moved out from the cytoplasma. But both the process is having a large molecule which cannot pass through the membranous pore. वो membranous pore में से जो molecule बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे large molecule जो है वो ऐसे अंदर आएंगे और ऐसे बाहर जाएंगे. Okay. तो दो scientists थे, and they are Spara and Kornowski. In 1959 postulate that both pinocytosis is also known as cell drinking. What it is called? Cell drinking. And phagocytosis are active process. Phagocytosis is also known as cell eating, right?
So pinocytosis means cell drinking because whatever the molecule enter into the cytoplasmic region is water dissolved molecule and it form a vesicles, right? So it is known as cell drinking. And if a solid particles or molecule enter into the cytoplasmic region, that process is known as phagocytosis. But together this process are known as endocytosis, क्योंकि दोनों प्रोसेस में कुछ सेल के अंदर आ रहा है, that is known as एंडोसाइटोसिस. तो अंदर जो सेल में आ रहा है अगर वो हार्ड सॉलिड पार्टिकल है, then it is known as phagocytosis. It is known as cell eating, right? और अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो वाटर डिजोल्व है और वेसिकल के फॉर्म में अंदर आ रहा है विद द वाटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस. इट इज ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग. तो पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग एंड टुगेदर दे आर एंडोसाइटोसिस, क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर आ रहा है सेल में. अगर उससे उल्टा हुआ दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, चलिए तो पहले हम देख रहे हैं फैगोसाइटोसिस. पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज अबाउट द फैगोसाइटोसिस. तो यहां पे हम लिख देते हैं दिस प्रोसेस और दिस डायग्राम शोज व्हाट? फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस को दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? फैगोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज सेल ईटिंग. ठीक है, लेकिन फैगोसाइटोसिस जो है वो अगर हम बात करें तो वो मेनली होगा मैक्रोफेजेस में. ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अमीबा में. ठीक है, तो ये सारे उसके एग्जांपल है. फैगोसाइटोसिस टेक्स प्लेस इन amoeba, right? It is also found in macrophage because we know that the macrophage engulf what? Macrophage engulf the foreign particles on any bacteria. Okay, so supposing that this membrane is nothing but the plasma membrane. ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप ऐसा काउंट करो कि ये अमीबा है या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वो मैक्रोफेज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, व्हेन एनी सॉलिड पार्टिकल come in contact with this plasma membrane. ये suppose यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि this is the solid particle. That solid particle come in contact with what? Plasma membrane. ठीक है, जैसे ही वो plasma membrane के contact में आएगा, plasma membrane develop one lumen or a fold towards the cytoplasma. ये part जो क्या है? Left side is cytoplasm, right? तो plasma membrane जो है, ठीक है, ये suppose आप ऐसे समझ लो this is the particle और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस पार्टिकल कम इन कांटेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, जैसे वो उसके कांटेक्ट में आएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ग्रेजुअली क्या करेगा? इट कवर्स दैट फॉरेन पार्टिकल. ठीक है, ओके, और ग्रेजुअली उसके बाद क्या होगा? दैट एंटायर पार्टिकल्स इज कवर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेटली स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिसोसिएट. ये ब्लैक पार्ट जो मैं दिखाया है वो टेक्निकली क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, और वो ये फूड पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल के आसपास हो गया एंड एट दैट टाइम इट फॉर्म व्हाट? एट दैट टाइम इट फॉर्म नथिंग बट व्हाट? इट फॉर्म फूड वैक्यूल. वो क्या बनाएगा? इट फॉर्म फूड वैक्यूल. ये क्या बना है? फूड वैक्यूल, राइट? ओके, तो ऐसे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या हुआ? यूटिलाइज हुआ. अब इससे पूरा आप रिवर्स सोचो. इससे क्या सोचना है? पूरा रिवर्स, कि अगर सेम वे ये मेरा पहला डायग्राम है, दिस वन इज द फर्स्ट डायग्राम, दिस वन इज द सेकंड, दिस वन इज द थर्ड एंड दिस वन इज द लास्ट वन, फोर्थ. ठीक है, ये बाहर से कोई मॉलिक्यूल कहाँ आया? साइटोप्लाज्मिक रीजन में, क्योंकि ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक पार्ट और ये क्या है? ईसीएफ. ये क्या है? ईसीएफ. ठीक है, ओके, तो हर एक बार अगर हम बात करें, ये सिर्फ आप याद रखना. ठीक है, ये बाहर का पार्ट जो वो ईसीएफ है और अंदर का पार्ट जो क्या है? साइटोप्लाज्मिक पार्ट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ओके, तो यहाँ पे डायग्राम 1 2 3 4 दैट शोज व्हाट? दैट शोज फैगोसाइटोसिस. मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? सेल ईटिंग. लेकिन अगर प्रोसेस पूरा इससे उल्टा हुआ, मतलब अगर मैं डायग्राम जो है इसको फर्स्ट डायग्राम लिखूं, इसको सेकेंड, देन इसको थर्ड एंड दिस वन इज द लास्ट, फोर्थ, तो इस कंडीशन में आप क्या सोचोगे? कि ये कोई एक हम ये बोल सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जो है उसके आसपास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो अटैच हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. फिर वो सब्सटेंस जो है वो ग्रेजुअली इसको कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है. तो ये जो पहली प्रोसेस थी ऊपर की, दैट इज नोन एज सेल ईटिंग. ठीक है, या फिर हम उसको क्या बोलते थे? फैगोसाइटोसिस. ये नीचे का जो प्रोसेस है इट इज नोन एज ईफैगी. उसको हम क्या बोलेंगे? ईफैगी. या फिर आप इसको बोल सकते हैं सेल वॉमिटिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? सेल वॉमिटिंग.
क्योंकि सेल जो है वो कुछ चीज़ें क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अगर वो चीज़ बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब ये है कि जब वो अंदर ले रहा है तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, एंडोसाइटोसिस। ये दोनों प्रोसेस, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, वो क्या है, एंडोसाइटोसिस। तो ये ऊपर का पार्ट जो है दैट इज फैगोसाइटोसिस, वो है क्या, एंडोसाइटोसिस। और ई फैगी सेल वॉमिटिंग जो है वो क्या है, वो एक्सोसाइटोसिस है। को सेल में से कुछ क्या आ रहा है, बाहर। तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस, ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हम कब बात कर रहे हैं, व्हेन देयर इज अ हार्ड मॉलिक्यूल या फिर सॉलिड मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, तो ये पूरा हो गया फैगोसाइटोसिस और उसका रिवर्स ई फैगोसाइटोसिस या फिर ई फैगी या फिर सेल वॉमिटिंग। चलिए ये एक हो गया। सेम वे अगर यहां पे मैंने देखिए डायग्राम में मैंने लिखा है, ये डायग्राम जो है मैंने बनाया है उसमें यहां तक जो है इसको हमने फैगोसाइटोसिस बोला, ये क्या होगा, दिस प्रोसेस इज पिनोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, सेम प्रोसेस, लेकिन पिनोसाइटोसिस में जो मेम्ब्रेन होंगे वो मेम्ब्रेन के ऊपर देखिए क्या है, ये रेड मैंने डॉट्स बनाया है, आई थिंक नथिंग बट द रिसेप्टर। वो क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। वो कहां पे होंगे, मेम्ब्रेन की सरफेस पे, ठीक है। और ये रिसेप्टर के पास जब कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे कि जो कैसे हो, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ये सारे सपोज मॉलिक्यूल जो है वो, ठीक है। तो ग्रेजुअली सेम वे वो जो मेम्ब्रेन जो है दैट फॉर्म इनफोल्ड्स टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मा, ग्रेजुअली इट ऑलमोस्ट कवर द ऑल वैक्यूल काइंड ऑफ थिंग विच इज अ वाटर डिजॉल्व मॉलिक्यूल, ठीक है। और ऐसे सेपरेटली एक क्या बन जाएगा, वेसिकल्स जो है वो बन जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और यहाँ पे आपको और एक चीज याद रखनी है कि ये फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस टुगेदर दे आर नोन एज अ बल्क ट्रांसपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस टुगेदर दे आर नोन एज व्हाट, बल्क ट्रांसपोर्ट। ये दोनों जो है उसको हम क्या बोलेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट। और ये बल्क ट्रांसपोर्ट जो है उसमें हम मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर आ रहा है तब यूज हो रहा है, बाहर जा रहा है तब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट हो जाएगा। और इससे देखिए कि हम एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब फूड पार्टिकल अंदर ले रहा है तब ये फूड वैक्यूल जो बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज हो रहा है। और सेम वे जब वो फूड पार्टिकल बाहर निकलेगा, ठीक है, या फिर कोई अनवांटेड प्रोडक्ट बनेगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कुछ बनी, या फिर कोई एक्सक्रीटरी सिक्रीटरी सब्सटेंस कोई डेवलप हुआ, तो वो वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगा, इट बिकम अ पार्ट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टुकड़ा इसके आसपास आ गया, फूड के आसपास, जब वो रिलीज होगा तब वापस वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो ओवरऑल जो सेल जो है उसकी सरफेस एरिया जो है वो मेंटेन होगी। सो दिस इज फैगोसाइटोसिस, दिस वन इज द पिनोसाइटोसिस, एंड टुगेदर दे आर एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर कुछ आ रहा है, उससे रिवर्स जो होगा दैट इज एक्सोसाइटोसिस। प्रोसेस सेम होगी, ओके। और ये जो प्रोसेस है दैट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। एंड फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस टुगेदर दे आर नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई पोर से नहीं आ रहा है, मेम्ब्रेनस पोर से नहीं आ रहा है, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल है दे आर लार्जर देन द मेम्ब्रेनस पोर, ठीक है। तो वो पूरा मेम्ब्रेन तोड़ के अंदर आ रहा है और मेम्ब्रेन उसको कवर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट भी बोलेंगे। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसी बात में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल, किसकी बात करें हम, प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्लांट सेल डू नॉट शोज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। मतलब अगर हम बात करें तो प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में क्या नहीं होगा, इट डू नॉट शोज एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ऐसा क्यों होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्योंकि दोनों में क्या है, बोथ द सेल कंटेन सेल वॉल। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, इट कंटेन सेल वॉल, ठीक है। और प्लांट सेल जो है दैट इज ऑल्सो हैविंग अ सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ब्रेक हो सकता है, सेल वॉल जो इट इज अ रिजिड फॉर्म। तो ये दोनों बल्क ट्रांसपोर्ट या फिर पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस डू नॉट टेक्स प्लेस इन बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन प्लांट सेल। आई होप कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये बार बार अलग अलग जगह पे फिजियोलॉजी में आएंगे। आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा।
अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल जो है अद्वैत अचीवर्स सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। हमारा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत ही अच्छी टीम जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में है रॉय सर और उसके साथ है डॉक्टर विनयदीप बुनेठा एज वेल एज ब्रिजेश राजन, और फिजिक्स में हमारे पास है डॉक्टर प्रीतम केसरी एंड अंकित वर्मा सर, और मैथ्स में भी जेडब्ल्यू की टीम जो है उसमें हमारे पास है कमलेकर सर, देविदास कमलेकर सर, और उसके साथ है निशांत राजगौर। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लगे रहो, मेहनत करो, सक्सेस के लिए दौड़ते रहो। स्टे ट्यून। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।